Yeah. So the vertical scaling here, the example is that I have a one server with the M1 small category, right? There I have 40 GB of storage. In this 40 GB of storage, I want to add the another 40 GB of storage. Earlier I have one, I have added plus one, right? If I added plus one, it means that I am adding into the existing server the more resources. But because here is 40 extra that I am adding, can I add 400 or 4000 GB in this server? Hello? Because your voice is not clear to me. Speak louder, man. Hello. हाँ विकास. Hello. Yeah. This is just right? I'm not getting you. What are you trying to say? Okay. Seems that because your voice is not clear to me. So here I cannot add unlimited here, right? I cannot add unlimited here because the reason is that this server has a limitation, right? It cannot go to the anonymously, right? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं लेट्स से 4 CPU है तो 400 CPU या 4000 CPU हो सकता है. Not possible for me, right? But in the horizontal scaling, I have 40 GB of storage here. Can I add another one server and take another 40 GB? Yes. Can I take another server with the 40 GB? Yes. So horizontal scaling can be increased like anything. But the vertical scaling, existing servers cannot be upgraded to the X number. Not possible because it has a limitation of this, right? And that is the reason the horizontal scaling the companies adopts, right? So if I go with that, auto scaling allows you to scale your application rapidly, right? Automatically, and it ensures that your instances are running seamlessly and there is no problem when the spike happens, right? So here, if I need to do the auto scale, what should I do? मुझे क्या करना पड़ेगा ऑटो स्केल के अंदर, गाइस? सो ऑटो स्केल के अंदर सबसे पहले ऑटो स्केल करने के लिए कितना स्केल होगा, ऐसा तो नहीं है कि एनोनिमस स्केल होगा, राइट? कितना आगे जा सकते हैं. सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि स्केल कैसे होगा. किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए उसकी बेसिक क्वांटिटी होना ज़रूरी है, राइट? तभी तो वो होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यार मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा. टू बी वेरी ओपन, आई एम स्टॉपिंग हियर. अगर मुझे एक बंदा नहीं मिलेगा जिससे मैं टॉक कर सकूँ, अदरवाइज डिफिकल्ट है मेरे लिए. आई नीड समवन. सत्यवान, डू यू हैव द वॉइस प्रॉब्लम, बैकग्राउंड नॉइज? सोनाली, विशाल, आप सब लोगों का बैकग्राउंड प्रॉब्लम है. Hello. Yeah. Sir, Akshay here. It's fine, Akshay. Is clear or getting background noise? नहीं, it's fine. It's fine. Okay. Okay. Let's go this way now. Sure. So let's talk about it. Okay. Just a sec. What went wrong here? Shit, man. So अक्षय इलास्टिक का क्या मतलब होता है, राइट? इलास्टिक मीन्स व्हाट? इलास्टिक मीन्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो, राइट? Elastic cannot be only increase, right? That is very important thing, right? And for elastic, I need some fundamental thing. कुछ चाहिए, उसको मैं increase कर सकता हूँ या decrease कर सकता हूँ, right? That's what is very important. So this is the way the things happens, right? So the thing is that first of all that I should have, जब मैं किसी चीज़ को increase या decrease करना चाहता हूँ, I need a fundamental thing that is called desired. मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए. That is called desired, right? और उसको मैक्स कितना तक इलास्टिक करना है, हाउ लॉन्ग आई हैव टू गिव, दैट आई नीड टू डिफाइन, राइट? दैट इज कॉल्ड मैक्स.
right? That is called max. And if I'm not using that, it should reduce. This is called minimum. Are you getting it? So the thing is that, let's say, to in the daytime, when my business is going on, I need minimum 2 servers to run, right? And when, let's say, evening 4 to 7 my business increases, then I need 5 servers. So from 2 I am going to the 5. But during the night time, when nobody is using, at least 1 server should be there. So minimum is 1, desired is 2, and maximum is 5. Understood? And that's what the in between the elasticity will happen, right? In between the elasticity will happen, that talks about कि बॉस desired तो इतना है, minimum इतना है, और maximum इतना है. Understood now? Now tell me one thing. जब you will create this desired, तो बॉस आपको इसके अंदर कुछ information चाहिए ना. एग्जाम्पल, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा, उसके अंदर का CPU, मेमोरी, स्टोरेज चाहिए होगा. करेक्ट है ना? राइट. और वो एप्लीकेशन का जो पैकेज है, ये जो पूरा पैकेज है, नॉट ओनली टू दिस डिजायर, जब वो इंक्रीज होगा सर्वर, उसमें भी चाहिए होगा. राइट? आर यू गेटिंग इट? जब इंक्रीज होगा, जितने भी सर्वर्स इंक्रीज हैं, लेट्स से कि ये जो सर्वर है, अगर ये इंक्रीज एक और सर्वर आता है, तो उसमें सब कुछ एज इट इज दूसरे सर्वर में भी होना चाहिए, राइट? एवरीथिंग, देन ओनली इट विल वर्क. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Otherwise, how it will work, right? So the thing is that this is called configuration, right? This configuration should be stored somewhere, right, Akshay? This configuration should be stored. और जो configuration store करते हैं, वो क्या है, हमने पढ़ा है उसको, right? There is a one component जिसमें हम configuration store करते हैं. Do you remember? नहीं याद आ रहा? टेम्पलेट, यूजर डेटा, टेम्पलेट, राइट. यूजर डेटा में तो एप्लीकेशन जाता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाता, CPU, मेमोरी नहीं जाता, स्टोरेज नहीं जाता, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं जाता, की पेयर नहीं जाता, राइट, टैगिंग नहीं जाता. इसमें तो सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड इनपुट डालते हैं हम. करेक्ट? That is called template. So if I store the information to the template, and while launching the server I use this template, because when this server will launch, I will not be there, right? I will not be there. ये automatically आने वाला है, right? Make sense? Yes. So the thing is that now there could be multiple scenarios here. Guys, just pay attention, okay? Just pay very much attention here, because this is the important concept that, right, industry में इसमें काम करना ही है आपको जाकर. Whenever you are adding the server or deleting the server, quite possible that you want a notification, right? You want a notification to you कि बॉस server added और server deleted, जब आप रात को delete हो रहा है, right? Yes, server could not added और सर्वर could not deleted, right? Are you getting? ऐसा हो सकता है ना? In all the conditions you want a notification, right? It means you want alerts. Dynamically scaling we talked about, can be added to the BPC, that's fine. Cost saving, बहुत simple सी बात है. Whenever you do not need a server, you are deleting it. It means you are saving the money. Whenever you need it, it will automatically add, right? ऐसा तो नहीं है कि आपने लगा दिया और वो हमेशा चल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला ना, राइट? सो योर elasticity is there, costing is there, and everything that we talked about. Alerts, जब आप मेल नोटिफिकेशन आ रहा है, it means that is alert, right? So here you can see that the configuration that we are going to take it, AMI, instance type, security, everything we are storing into the launch configuration, right? Either you can store into the launch configuration, or you can add into the template. And whenever you are doing the scaling, you need to design a desired, max and minimum.
Understood? Yes. Right? And that's what is important here, right? Anybody have any question here? Okay. सर डिजायर्ड तो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं ना, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट. स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट कि हाँ मुझे चाहिए कह सकते हैं, बट नॉर्मली टेक्निकल वर्ड इज desired. So this is the life cycle here, right? Launch instance, instance ID, configuration you do it, you define permissions, you add it into the group, you add to the load balancer, set the instance, mark activity complete, right? This is the add process, and this is the delete process, right? Whenever an instance is added to the auto scaling, then this process is there. Start from here, go till here. Whenever the instance is deleted, this process starts. Set instance to terminate, remove from the load balancer, remove from the monitoring, terminate instance, confirm termination, remove from the auto scaling, and mark activity complete. This cycle you have to remember it, because in interview they ask. Okay, in interview they ask this question. Make sense? Okay, so this is the life cycle. Now here the different load scenarios are there, right? The auto scaling is the predictable burst. Predictable burst का मतलब है आपको पता है कि कब मेरा auto scaling होने वाला है, right? Example, मेरा जो let's say I am running a website and website पे जो ट्रैफिक आता है वो 5 to 8 के बीच में आता है. आई नो कि मेरा स्केल कब होने वाला है. आर यू गेटिंग? मेरा स्केलिंग अप होने वाला है किस टाइम पर, राइट? सो यू कैन डिफाइन द डेट, टाइम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड डिजायर्ड अकॉर्डिंगली. तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पता है कि कितना लोड आने वाला है, कितना नहीं आने वाला, राइट? तो मिनिमम लेट्स से एग्जांपल 10, मैक्सिमम 50, यू डिजाइन इट एंड यू आर गुड. ऑन विच टाइम? दिस इज द डेट कि बॉस इस टाइम पर मेरे को ये करना है, राइट? सो हियर अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं है आपको, आपको पता ही नहीं है लोड कब आएगा, राइट? अचानक से आपकी साइड में बिकॉज राइट आपने एक सेल डाल दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग लेट्स से एवरी डे अराउंड 100 यूज़र आते थे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग क्या 200 आ जाएंगे, बट पता चला 1000 आ गए, राइट? So here the condition is dynamically changing, right? Huge. In that case you do not know. अभी इतना है, फिर बाद में फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे चल रहा है. Launch that will also manage, right? तो predictable you know, unpredictable you cannot, but everything will be managed by auto scaling. Then is constant growth, right? This month let's say I started the website, this month only 100 यूजर थे, next month 150 आ गए, उससे नेक्स्ट मंथ 200 हो गए, उससे नेक्स्ट मंथ 250 हो गए. तो प्रेडिक्टेबल है, कांस्टेंट ग्रोथ चल रहा है आपका, राइट? एंड यू कीप मॉनिटरिंग. आपकी जो मॉनिटरिंग है उसको आप चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि लोड कितना बढ़ रहे हैं, यूजर्स कितने बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप सर्वर ऐड करते जाइए, राइट? ये सर्वर ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे, राइट? तो आप जो मैक्सिमम कैटेगरी है उसको इंक्रीज करते जाइए. जैसे आपकी मैक्सिमम आपने शुरू में रखी थी 4 सर्वर्स, 150 यूजर नेक्स्ट मंथ आए, इसको 6 कर दिया, 200 हो गए, इसको 8 कर दिया, राइट? 250 हो गए, उसको 10 कर दिया. तो इट इज़ अ वेरी कांस्टेंट, पता है आपको कि भैया इंक्रीज हो रहा है फिक्स नंबर, फिक्स कैपेसिटी में, एंड वी आर गुड, राइट? सो व्हाट वी डू, वी डू द लॉन्च कन्फिग. दिस इज द प्रोसेस, राइट? दिस इज द प्रोसेस दैट वी नॉर्मली डू. एक बात और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो बताना है मुझे आपको, राइट? when should the server increase? कब होगा? लेट्स से आपने एक कॉन्फ़िगरेशन ऑटो स्केलिंग सेटअप कर दिया, दिस इज ऑटो स्केलिंग. when should the new server add? कोई तो कंडीशन लगाओगे ना कि नया सर्वर कब होना चाहिए, राइट? आर यू गेटिंग इट, अक्षय? तो दैट कंडीशन, राइट, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, इवेंट एंड ट्रिगर, राइट? तो
अगर मेरा सर्वर का यूटिलाइजेशन 80% है तो न्यू सर्वर आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग गाइस? अगर मेरे सर्वर का यूटिलाइजेशन 80% है तो न्यू सर्वर आना चाहिए। आर यू गेटिंग? कोई तो कंडीशन लगाओगे ना सर? यस। Any question on this, anyone? Sir, apart from CPU, RAM utilization, storage utilization पे भी यूज कर सकते हैं ना पैरामीटर? I'm sorry? अभी जैसा CPU एज अ ट्रिगर अपन ने यूज किया है, तो लाइकवाइज RAM यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यूटिलाइजेशन बिल्कुल कर सकते हो आप सर, बिल्कुल कर सकते हो, राइट? आई जस्ट गिवन एन एग्जांपल, राइट? सो आप बिल्कुल कर सकते हो, CPU, मेमोरी, नेटवर्क, आप उसके हिसाब से कर सकते हो, राइट? तो बट ये 80% इज द थ्रेशोल्ड, राइट? आप कितना भी रख सकते हो, लेट्स से 50%, लेकिन इस 50% के बाद एक्शन होगा ना, जब इस पे थ्रेट पहुंचेगा, राइट? और जब ये 50% हो देन ऑल्सो यू वांट अलर्ट, राइट? मतलब नोटिफिकेशन चाहिए आपको कि बॉस 50% हो गया। आर यू गेटिंग इट? यस। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग अक्षय, दैट अगर ये मेरा सर्वर का यूटिलाइजेशन 50% हो जाता है, शुड राइट अवे, लेट्स से 50% हुआ, 1 सेकेंड के लिए सर्वर का यूटिलाइजेशन 50% गया, फिर वो नीचे आ गया, डू यू वांट टू ऐड द सर्वर? अंडरस्टूड नाउ? It should be there for some time on the defined interval, then only it should happen, right? Or constantly, let's say सर्वर का यूटिलाइजेशन 50% गया 1 सेकेंड के लिए, फिर डाउन आ गया, फिर 2 आवर्स के बाद फिर वापस 50% गया। इन बोथ द केसेस यू विल नॉट ऐड द न्यू सर्वर, राइट? राइट। It should be there for some time and right consecutive, अगर एक बार 2 बार होता है then I will think of, right, to add the server. Understood? Okay. So here this is the steps, right? So launch configuration we talked about, scaling group we talked about, policy you need to set up कि boss how to respond, right? कैसे होना चाहिए। और ये जो ऑटो स्केलिंग होता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 3 things work together. ये चेक कौन करता है कि यूटिलाइजेशन 50% मैच हो गया या 80% मैच हो गया, मुझे सर्वर ऐड करना डिलीट करना है, ये सब करता है क्लाउड वॉच, राइट? सो ये ट्रिगर है, ये पॉलिसी है, हेल्थ चेक, राइट? सर्वर जब आप बना रहे हैं तो उनका हेल्थ कैसा है, राइट? अगर हेल्थ सही है तो उस पर रिक्वेस्ट जाएगा, अगर हेल्थ सही नहीं है तो उस पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, who decide कि सर्वर इज गुड और नॉट? क्लाउड वॉच। So you can set the auto scaling on the web application tier, load balancing, right? Other stateless tier, right? Stateful and stateless, right? VPC हमने VPC में पढ़ा था, right? Connection establish होने के लिए। So you can do the manual scaling जो हमने last time देखा, जो हमने load balancer के साथ करा था। Scaling by schedule, जब आपका टाइमिंग है कि इतने से इतने बजे तक मेरे सर्वर जो है ऐड हो, लेट्स से 5 to 8 के बीच में ही ऐड हो। स्केलिंग बाय पॉलिसी, राइट? यू डिफाइन कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 50% हो गया है तो सर्वर ऐड हो जाने चाहिए। तो स्केलिंग बाय शेड्यूल, स्केलिंग बाय पॉलिसी, राइट? यू कैन डिफाइन। सो दिस इज एन एग्जांपल दैट टॉक्स अबाउट कि आपने लोड बैलेंसर लगाया, उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में अगर नया सर्वर बन रहा है तो इट इज़ हैपनिंग थ्रू ऑटो स्केलिंग, राइट? यू कैन डिफाइन। मैनुअल भी कर सकते हो, बट मैनुअल कब तक करोगे यार? मैनुअल आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा तो आप बैठे रहोगे क्या? और अगर डिलीट करना है तो क्या करोगे? तो रात को जब यूटिलाइजेशन चेक करोगे क्या पूरे टाइम बैठ के कि कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ देन आई विल डू द रिडक्शन और इंक्रीज। नो, सो ऑटो स्केलिंग इज एडेड हियर, राइट? एंड हु इज डूइंग ऑल दिस एंड हु इज टेलिंग ऑल्सो दिस टू द लोड बैलेंसर एंड हु इज एडिंग और रिमूविंग द सर्वर? क्लाउड वॉच।
and that is the reason three things works together: the load balancer, auto scaling and CloudWatch. So it is not recommended कि बॉस आप खेलो स्केल अप और स्केल डाउन आप फ्रीक्वेंट करो, नहीं, राइट। आप जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो आप कॉन्फ़िगरेशन सर्वर आप 100 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट। इफ रिक्वायर्ड द यूजर कैन सस्पेंड ऑटो स्केलिंग, आप हटा सकते हो, आपके ऊपर है, लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मैक्सिमम 125 स्केलिंग एक्शन आप डिफाइन कर सकते हो कि सीपीयू का करना है, करना है, सीपीयू का 50% करना है, सीपीयू का 25% पे करना है, आपके ऊपर है। यू कैन, जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है वो क्या करता है, ओल्ड इंस्टेंस को डिलीट करता है पहले। जैसे आपके पास देयर वर 2 इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस एडेड व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन वाज 80%, तो बस ये तो 80% पे तो ऐड कर दिया उसने। रात को जब यूटिलाइजेशन कम हो गया तो ये वाला नया सर्वर था, तो कौन सा डिलीट होगा पहले, ये वाला डिलीट होगा या ओल्ड? ओल्ड वाला डिलीट होगा पहले, राइट। ओके, यू कैन चेंज दिस पॉलिसी, आप नए को भी डिलीट कर सकते हो, राइट। आप डिलीट इंस्टेंस विद द ओल्डेस्ट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन पुराना है उसका भी कर सकते हो, और क्लोजेस्ट टू द नेक्स्ट इंस्टेंस आर, राइट। आप जो ऑलरेडी जो डिलीट हुआ है उसका क्लोज जो बना था, राइट, वो भी डिलीट कर सकते हो आप। ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ कि जो आपके ओल्ड सर्वर्स हैं वो पहले डिलीट होते हैं और जो न्यू सर्वर्स हैं वो नहीं डिलीट होते, याद रखना। इंटरव्यू में ये भी पूछता है, राइट। EBS बैक्ड इंस्टेंस आर फास्टर, ऑब्वियसली EBS इज़ अ फास्टर स्टोरेज, तो वो आपको फास्ट परफॉर्मेंस देगा। ऑलवेज रिकमेंडेड टू द सेम साइज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सर्वर जो है वो 1 CPU का है और दूसरा सर्वर आपने 5 CPU का लगा दिया, ऐसा नहीं करना कभी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये फास्ट परफॉर्मेंस आएगी, इसकी स्लो परफॉर्मेंस आएगी। दैट्स व्हाट वी नेवर वांट, राइट। यू कैन यूज द स्पॉट और रिजर्व इंस्टेंस ऑल्सो। ऑटो स्केलिंग ग्रुप वर्क्स विद द मल्टीपल एबिलिटी जोन, तो वो तो आपके ऊपर है, आप कौन से एबिलिटी जोन में यूज़ करना चाहते हैं। यू कैन ऐड द ऑटो स्केलिंग, यू कैन यूज द ऑटो स्केलिंग विद और विदाउट द लोड बैलेंसर, आप लोड बैलेंसर के साथ भी ऐड कर सकते हो और विदाउट लोड बैलेंसर के साथ कर सकते हो। आप GUI से लॉन्च कर सकते हो, CLI से लॉन्च कर सकते हो, आपके ऊपर है, ओके। कमांड लाइन से भी कर सकते हो। तो ऑटो स्केलिंग चेक्स द हेल्थ एंड टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली पीरियडिकली। ऑटो स्केलिंग इज कॉन्फ़िगर्ड विद द ELB, द यूजर कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर द हेल्थ चेक टू द परफॉर्म बाय द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर चेक करेगा उसका हेल्थ क्या है और उसके बेस पे वो उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट। अगर हेल्थ चेक का रिक्वेस्ट आता है ओके, देन ओनली द रिक्वेस्ट विल गो। ओके के अलावा अगर कुछ भी है तो इट विल कंसीडर अनहेल्दी, राइट। अगर वो अनहेल्दी है, अगर लोड बैलेंसर को अनहेल्दी रिक्वायरमेंट मिलती है तो वो उस इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा, राइट। अगर लोड बैलेंसर इटसेल्फ इज अनहेल्दी, अगर लोड बैलेंसर इटसेल्फ अनहेल्दी है तो वो दूसरे सर्वर्स पे रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा। अगर लोड बैलेंसर हेल्दी है, इंस्टेंस अनहेल्दी है तो दूसरे वाले इंस्टेंस पे भेज देगा, लेकिन लोड बैलेंसर ही अनहेल्दी है तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लोड बैलेंसर अनहेल्दी हो, बिकॉज लोड बैलेंसर को कौन मैनेज करता है, AWS। दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट। जो ऑटो स्केलिंग जो होता है वो CloudWatch के थ्रू मॉनिटर होता है, और CloudWatch वी हैव नॉट लर्न, सो वी विल लर्न देयर विल इट मैनेजेस थ्रू द मैट्रिसेस, राइट। उसके अलग अलग होते हैं, जैसे CPU यूटिलाइजेशन, CPU मेमोरी स्टोरेज, दिस ऑल कॉल्ड मैट्रिसेस, राइट। The auto scaling group send the data to the CloudWatch, that's what I said, that describe the group instead of the single instance. It include the matrices such as group minimum size, maximum size, मतलब group का size कितना है, desired, minimum, maximum, that I already talked about, right? Okay. अगर आपको पता करना है कि matrices क्या है, then you can enable the detail monitoring. We will learn what is detail monitoring, that we have not learned. It is in the CloudWatch. तो हेल्थ चेक कौन करता है, हेल्थ चेक करता है CloudWatch, और CloudWatch उसको मैनेज करता है। तो यू कैन डू द ऑटो स्केलिंग मैट्रिसेस रिप्रेजेंट द वेरियस डेटा काउंट्स सच एज करंट स्टेट काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम काउंट। तो बेसिकली आपकी जो ऑटो स्केलिंग के ग्रुप के जो काउंट्स हैं, दैट टॉक्स अबाउट मिनिमम, डिजायर्ड और मैक्सिमम। सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम, डिजायर्ड एंड मैक्स।
राइट। तो डिजायर्ड लेट्स से आपने डिजायर्ड सेलेक्ट किया लेट्स से 2, तो राइट अवे जैसे ही आप ऑटो स्केलिंग लॉन्च करेंगे ना तो 2 सर्वर तो बाय डिफॉल्ट रेडी हो जाएंगे। जब इसका यूटिलाइजेशन आपने ट्रिगर करा है कि बॉस 50% यूटिलाइजेशन हो तो नया सर्वर लॉन्च हो जाए तो नया सर्वर कर देगा। अगर आपने करा है कि मेरा जो रिडक्शन है कि मेरा यूटिलाइजेशन 20% से कम हो जैसे ही होता है तो एक सर्वर कम कर देना, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। सर डिजायर्ड में जैसे ओवरऑल कैलकुलेट होगा ना सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर जो भी ओवरऑल, यस राइट। डू नॉट स्केल योर डेटाबेस, डेटाबेस को स्केलिंग नहीं करते, ऑटो स्केल नहीं करते डेटाबेस को आप जब। और एक चीज़ और है, जब ऑटो स्केलिंग करते हैं तो आपने सर्वर पे कुछ भी ऐसा लोकल में स्टोर करो कि वो सर्वर उड़ जाए, मतलब कुछ भी क्रिटिकल आपके सर्वर पे नहीं होना चाहिए जब आप ऑटो स्केल करते हैं। अगर आपने कुछ क्रिटिकल रखा है और आपने यूटिलाइजेशन रिडक्शन कर दिया और नाइट में जब आपका यूज़ नहीं हो रहा है तो पता चला सर्वर डिलीट हो गया और उसके साथ डेटा भी चला जाएगा, राइट। इफ़ यू वांट ऑडिट लॉग, राइट, दैट स्टोर योर डेटा और लॉग्स टू द S3, आप S3 में रखिए जो भी रखना है। एंड यू कैन मैनेज द सेशन विद द स्टिकी सेशन, राइट, और रिप्लिकेट सेशन डेटा। ऑलवेज प्रीफर स्टेटलेस ऐप फॉर द ऑटो स्केलिंग, मतलब जिसका कनेक्शन चला भी जाए तो मैनेज हो सके, राइट। एंश्योर योर AMI इन द सेम रीजन, राइट, AMI आपके सेम रीजन में होनी चाहिए। ऑलवेज मॉनिटर योर रिसोर्सेज, फाइन ट्यून, आप फाइन ट्यून करते रहिए, वन टाइम कन्फिग्रेशन नहीं है, इसको आपको कीप रिव्यूइंग करना पड़ेगा, आपको कीप चेकिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वन टाइम ऑटो स्केलिंग कर दिया यू आर गुड, नहीं, आपको चेक करते रहना पड़ेगा, राइट। एंड ELB, वी नीड ELB टू कन्फिगर द ऑटो स्केलिंग। आप लोड बैलेंसर अटैच करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या दूसरा लोड बैलेंसर करेगा। ELB जो कम्युनिकेट करता है पोर्ट 80 पे करता है, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। यू कैन कन्फिगर थ्रू कमांड लाइन ऑल्सो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड DNS यू कैन, DNS तो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑलरेडी इन द पास्ट कि आप लोड बैलेंसर के साथ DNS मैप कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी लास्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू डू एंड यू पीपल सेड कि आपने करा हुआ है, दैट इज ओके। सो मैनुअल स्केलिंग तो लास्ट टाइम हमने देखा था गाइज कि लोड बैलेंसर जब हम करते हैं तो वहाँ पे अगर सर्वर की ज़रूरत है वी कैन ऐड वन मोर सर्वर। लेकिन एक बात बताइए, लेट्स से मैंने एक सर्वर लिया, उस सर्वर को उसने लॉन्च किया, इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इट कैन टेक सम टाइम, राइट, इट कैन टेक सम टाइम। तो क्या इसको जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन, राइट अवे मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, मैं उसको प्रोडक्शन में लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर दूं, या मैं कम से कम डिफाइन इंटरवल लेट्स से मिनिमम 5 मिनट्स मैं इसको बोलता हूं कि बॉस अभी ना क्लस्टर के साथ ऐड मत होना, राइट, ओके। तो यहाँ ऑटो स्केलिंग वेट करेगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने का जब तक वो आपने जो टाइम दिया है, तो लेट्स से मैंने बोलता हूं मैं उसे 300 सेकेंड मीन्स 5 मिनट्स, 5 मिनट तक आप क्लस्टर में यूज नहीं होगी, आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। इसका बेनिफिट क्या है, इनिशियली जब हम शुरू में सेटअप करते हैं तो वी ऑलवेज रिकमेंड किया स्टेबिलिटी चेक करो। मेरे यूजर्स जो है सर्वर ऐड हो गया बट उसका एप्लीकेशन अप ही नहीं हुआ, तो जब यूजर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको क्या आएगा 404 एरर, क्योंकि सर्वर में तो एप्लीकेशन ही नहीं दिख रहा, उसको मिला ही नहीं आपका एप्लीकेशन। और तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने दीजिए, अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो भी गया तो आपको 5 मिनट्स मिल रहे हैं, आप सर्वर के अंदर जाइए, क्विकली चेक कर लीजिए एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट, everything is working or not, right, that is called cooling period. Clear? Any question on this? आप इस 300 सेकेंड्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। No questions? This is the assignment, right? So let's स्टोर टेम्पलेट रन टाइम पे कैसे होगा ना संतोष, आप मुझे बताइए कि रन टाइम पे कैसे होगा। आपने टेम्पलेट बनाया, राइट,
जब सर्वर लॉन्च होगा तो इस टेम्पलेट को यूज़ करेगा ना। रन टाइम पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीपीयू लेना है, मेमोरी लेना है, स्टोरेज लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, कैसे पता चलेगा, राइट? आपने इन्फॉर्मेशन एक कलेक्ट करके रख दिया है और वो उसको यूज़ कर रहा है। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? संतोष, यू गॉट द क्वेश्चन आंसर? या अभिजीत, योर वॉइस इज टू मच बैकग्राउंड नॉइज। सर ये जो कितना कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप एक बार बताएंगे क्या, रिपीट करेंगे? कितना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मींस? 100 कॉन्फ़िगरेशन एक पेज स्लाइड वाला, वो एक बार रिपीट करेंगे क्या? नहीं समझा नहीं मैं आपका बात। 100 कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कितने आप कर सकते हैं, राइट? कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा स्लाइड है यार? This one, right? 125 या here it is. हाँ ये तो ये बोल रहा है कि आपको फ्रिक्वेंट अप एंड डाउन नहीं करना है। आपके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन 100 हो सकते हैं, राइट? आप जब टेम्पलेट बना रहे हो या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर है तो आप 100 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट? इट इज़ रिक्वायर्ड द यूज़र कैन सस्पेंड एंड रिज्यूम द ऑटो स्केलिंग। आपके ऊपर है कि आप ऑटो स्केलिंग को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। यू कैन क्रिएट द 125 स्केलिंग एक्शन। CPU है, CPU, मेमोरी, स्टोरेज, डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट एंड ऑल, राइट? एंड द लास्ट इज कि आपका जो इंस्टेंस कौन सा डिलीट होगा पहले। अगर ऑटो स्केलिंग में स्केल डाउन कर रहे हो तो आपको कौन सा वाला सर्वर पहले डिलीट करना है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यू कैन चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। द डिफॉल्ट इज कि ओल्ड सर्वर पहले डिलीट होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके अभिजीत? हेलो? नो प्रॉब्लम अभिजीत। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स से मैं EC2 पे जाता हूँ, आप EC2 से भी जा सकते हैं। और रिसेंटली AWS ने इसको एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट भी बना दिया है। आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ऑटो स्केलिंग करके भी आएगा। AWS ऑटो स्केलिंग में देखिए, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, आई क्लिक ऑन दिस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। So this launch configuration talks about, where is the recording, man? What's going on already? Yeah, the recording is happening. So you can create your configuration also, right? So you can copy to the launch template, right? आप launch template अगर आपने template बनाया हुआ है तो वहाँ से copy भी कर सकते हैं, right? तो आप यहाँ पे create launch configuration कर सकते हैं। आपने क्लिक किया launch configuration, उस configuration का नाम दिया आपने test launch configuration। You can choose the AMI। अगर आपकी AMI ऑलरेडी, आपके यहाँ से AMI चूज़ कर सकते हो, राइट? जैसे मेरी टेस्ट AMI बनी हुई है तो आई कैन क्रिएट द टेस्ट AMI, यूज़ कर सकता हूँ मैं। एग्जांपल लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ। और इंस्टेंस टाइप
आई कैन चूज द इंस्टेंस टाइप हियर, जैसे टेम्पलेट में करते हैं सेम ऐसे ही है इसके अंदर भी, आप टेम्पलेट भी बना सकते हो। लेट्स से T2 माइक्रो लेना है मुझे, स्पॉट इंस्टेंस लेना है कि नहीं लेना मेरे ऊपर है, मॉनिटरिंग मुझे डिटेल इनेबल करनी है कि नहीं करनी, राइट। EBS इंस्टेंस ऑप्टिमाइज लेना है, दैट इज गुड, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट आल्सो। अगर मुझे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन सेलेक्ट कर्नल कितना, कर्नल आईडी क्या चाहिए, रैम क्या चाहिए एंड ऑल। इफ़ यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑन दिस यू कैन सेलेक्ट दिस, एल्स यू कैन स्किप। रूट आपका 10 GB चाहिए, राइट, 8 GB चाहिए, इट इज़ अप टू यू। जनरल पर्पज अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज। आपको और वॉल्यूम ऐड करना है, आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बनानी है, नई सिक्योरिटी ग्रुप है, तो नॉर्मली आई गो विद माई डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, key pair, I select the key pair, so I can take anyone, there are multiple I have, I acknowledge. So I've just taken all the steps that normally I do for EC2 launch, right? There is no as such new thing that we are doing it. Okay, I create the launch configuration, so it is created now. The launch configuration is really hardly a minute job and I'm done. And if I go to action, I can delete, I can copy, I can create the auto scaling group, right? So I come here, auto scaling, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, auto scaling group select करता हूँ और auto scaling group यहाँ से भी create कर सकता हूँ, और I can create from here also. सो आई क्लिक ऑन द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे जाके भी ऑटो स्केलिंग सर्च करता और उस पर क्लिक करता तो भी यही पेज आता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्केलिंग मिनिमम साइज, डिज़ायर्ड और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 4, डिज़ायर्ड 2, मिनिमम 1, राइट। स्केल आउट एज नीडेड, अगर आपको कम करना है तो आपके ऊपर है। अक्षय, कैन यू रीड दिस प्लीज? An auto-scaling group is a collection of Amazon EC2 instances that are treated as a logical unit. You can configure settings for a group and its instance as well as define the group's minimum, maximum and desired capacity. Setting different minimum and maximum capacity values forms the bound of the group, which allows the group to scale as the load on your application spikes higher or lower based on demand. To scale the auto scaling group, you can either make manual adjustment to the desired capacity or let Amazon EC2 auto scaling automatically add and remove capacity to meet changes in demand. When launching fleets or instances, you can specify what percentage of your capacity should be fulfilled by on-demand instances and what percentage with spot instances to save up to 90% on EC2 costs. Amazon EC2 auto scaling lets you provision and balance capacity across availability zones to optimize availability. It also provides life cycle hooks, instance health check, and scheduled scaling to automate capacity management. Understood now? Yes. Same thing is mentioned that we talked about it here now, right? So Correct. ऑटो स्केलिंग इज़ फ्री, ऑटो स्केलिंग का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें EC2 यूज़ करते हो या क्लाउड वॉच यूज़ करते हो तो उसका चार्ज लगता है। ओके, देयर आर व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, here is some help links are there, you can refer them, right? It talks about the feature related topics and all this, and here EC2, CloudWatch and load balancing, right? And I click on this create auto scaling group.
and I mention this test auto scaling, and here I need a template, right? But I have not created any template, so it is asking me, because remember that we created the launch configuration, right? So it talks about कि आप या तो template create कर लो या launch configuration ले लो. So I switch to the launch configuration and I select my test. कि कहाँ पे है लाइफ साइकिल हुक? कहीं पढ़ा था क्या हमने अभी अक्षय? हाँ सर, वहाँ लिखा हुआ था। हाँ, तो लाइफ साइकिल हुक का हाँ, तो लाइफ साइकिल हुक बेसिकली क्या करता है, आपका जो सर्वर का जो लाइफ है ना, राइट, आपका सर्वर का लाइफ कितना रहने वाला, राइट? एनीवे वी विल टॉक, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में. ओके, सो आई सिलेक्टेड द कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिया था. देखिए टेम्प AMI जो लिया, सिक्योरिटी ग्रुप कब बनाया था मैंने, ये की पेयर एंड ऑल दिस, राइट? एवरीथिंग इज हियर. नेक्स्ट, इट टॉक्स अबाउट VPC, इट टॉक्स अबाउट सबनेट. मैं सारे सबनेट ले सकता हूँ, जैसे हमने लोड बैलेंसर में भी सिलेक्ट किए थे. कल को अगर मुझे नया EC2 लॉन्च करना हुआ तो आई कैन सेलेक्ट, राइट? देन आई कैन डू दैट एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. एंड हियर इट टॉक्स अबाउट लोड बैलेंसर को ऐड करना है कि नहीं करना है, ऐड टू द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और अटैच अ न्यू लोड बैलेंसर. तो फॉर अ टाइमिंग नहीं ऐड करता मैं, राइट? विल सी लेटर. तो यहाँ पे EC2 चेक में, अगर आपका हेल्थ चेक होगा क्या लोड बैलेंसर के थ्रू होगा या EC2, तो मैंने तो लोड बैलेंसर लिया ही नहीं है, तो आई विल नॉट सेलेक्ट लोड बैलेंसर. यहाँ पे हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, द अमाउंट ऑफ टाइम until EC2 scaling performs the first health check of the new instance after they put into the service, right? तो अगर जब आप हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड का मतलब है कि जब तक ये जो 300 लिखा है, 300 टाइम तक आपका जो सर्वर है वो आपका हेल्थ चेक मॉनिटरिंग नहीं होगा. मतलब आपका सर्वर जब रेडी हो रहा है, राइट, उसको 5 मिनट्स दिए जाएंगे कि वो रेडी हो जाए फर्स्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट उसका हेल्थ चेक होगा. अगर आप इसको मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विद द हाउस, तो आप इसमें मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं क्लाउड वॉच, राइट? तो आप इसमें क्लाउड वॉच लगाएंगे तो ऑप्शनल है, बट यू कैन पुट इट क्लाउड वॉच फॉर द मॉनिटरिंग पर्पज. बट वी हैव नॉट लर्न द क्लाउड वॉच, सो आई एम स्किपिंग दिस फॉर टाइमिंग नाउ. वी विल लर्न क्लाउड वॉच एंड आई गो विद देयर डिजायर्ड, लेट्स से minimum cap is desired, let's say I make it 2, desired minimum 1 and the maximum 3. Okay, that's what I talked about. Now the scaling policy, right? इतने तो बनेंगे ही. तो स्केलिंग पॉलिसी नन है, मतलब आपका स्केलिंग का कोई पॉलिसी नहीं है कि आपका यूटिलाइजेशन 30% जाए, 40% जाए, 50% जाए एंड ऑल दिस, राइट? तो यहाँ पे मैं, अगर मुझे इसके ऑटो स्केलिंग करनी ही नहीं तो मैं आया क्यों था यहाँ पे? तो इसका मतलब मुझे तो इनेबल करना चाहिए, राइट? तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जब CPU यूटिलाइजेशन 50% है, राइट, तो जब मेरा CPU यूटिलाइजेशन 50% है तो मेरे को सर्वर ऐड कर देना. तो यहाँ पे वो कहता है 300 वार्म अप बिफोर इंक्लूडिंग तो द मैट्रिक्स. जब उसका मॉनिटरिंग शुरू होगा, जो पीछे हमने देखा सेम है कि बॉस आपका मैट्रिक्स मतलब मॉनिटरिंग में ऐड 300 सेकेंड तक नहीं होगा जब तक वो चलेगा. अगर आप स्केल इन प्रोटेक्शन, इफ प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्केलिंग, न्यूली लॉन्च इंस्टेंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्केलिंग बाय डिफॉल्ट. if protect from scaling is enabled, newly launched instance will be protected from the scaling by default. अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो आपका जो इंस्टेंस है वो डिलीट नहीं होगा. मैंने अभी आप क्या बताया आपको कि अगर आपका सर्वर का यूटिलाइजेशन कम होता है तो वो ओल्ड सर्वर को डिलीट कर देगा. अगर आपने ये इनेबल कर दिया तो जब नया सर्वर लॉन्च हुआ तो वो उस सर्वर को, अगर आपने कंडीशन चेंज भी कर दी तो किसी भी नए सर्वर को वो डिलीट ही नहीं करेगा. डिलीट प्रोटेक्शन जैसे EC2 में होता है ना, प्रोटेक्शन इनेबल, EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल, राइट, उसी तरीके से ये इसको सिक्योर कर देगा. तो ये सर्वर डिलीट नहीं होगा इवन दो द यूटिलाइजेशन विल गो डाउन, बट ये पर्टिकुलर ऑटो स्केल वाले सर्वर जो हैं वो डिलीट नहीं होंगे.
नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू सेट द नोटिफिकेशन इन नोटिफिकेशन दैट कब कब मुझे नोटिफिकेशन आएगा, जब सर्वर लॉन्च होगा, जब सर्वर डिलीट होगा, जब फेल टू लॉन्च होगा, जब फेल टू टर्मिनेट होगा। और ये किसको जाएगा, या तो मैं नया टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ या मैं एग्जिस्टिंग टॉपिक से बहुत सारे हैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे भी मेल आ सकता है, राइट। ये ईमेल आई लिखी हैं मेरे जो पुराने जितने भी बैचेज हुए हैं उन सब के, राइट। विकास, दिस इज योर ईमेल आईडी। हेलो विकास, सॉरी, हेलो, डिफिकल्ट टू हियर यू विकास। ओके, ये तो आपने पिंक किया है, मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग जो है वो आपका एक है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करने हैं तो आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, तो राइट, सेंड टू विकास, किस मेल आईडी पे, आप यहाँ पे मेल आईडी भी लिख दीजिए। इन अ टेक्निकल वर्ल्ड AWS के अंदर एक कंपोनेंट है SNS, तो ये SNS है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। ओके, नेक्स्ट, तो विकास नाम से ऑलरेडी है, विकास 8 AM बैच। राइट, यू कैन ऐड टैगिंग, अप टू यू। नेक्स्ट, जो आपने किया है यहाँ पे दिख रहा है सारा, यू कैन रिव्यू, यू कैन चेक एंड स्केल, ये क्रिएट कर देगा। एंड विकास, यू कैन चेक योर मेल, you must have got one mail, it is saying कि old वाला तो नहीं है, now it has changed the look and feel, right। तो इस लॉन्चिंग, तो if I go inside, it talks me desired minimum maximum, एक्टिविटी क्या कर रहा है वो, what all the things it is doing, it has, आपको एक मेल आया होगा विकास, राइट। ओके, और ये फेल्ड क्या कह रहा है, इसने क्या किया, लॉन्चिंग अ न्यू इंस्टेंस, रीजन द रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन करंटली नॉट सपोर्टेड। तो मैंने जो AMI लिया है वो सपोर्ट नहीं करता है, वो कहता है कि आपने जो किया है वो सपोर्टेड नहीं है, उसने EC2 इंस्टेंस बनाने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने जो AMI लिया है उसने मुझे मैसेज भी दिया था कि आपने जो लिया है वो गलत है आपका AMI, तो आप अपना दूसरा AMI लीजिए, दैट्स व्हाट इट इज़। तो उसने कोशिश करी है 3-4 बार करने की, नहीं हुआ, राइट, उसने फेल कर दिया। तो मुझे अपना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर AMI चेंज करना है और उसको ऐड करना है, राइट। तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम गेटिंग टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने स्केलिंग पॉलिसी क्या बनाई थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरी स्केलिंग पॉलिसी है कि 300 सेकेंड्स तक वो वार्म अप रहेगा, राइट। और इनेबल और डिसेबल करना है, इनेबल करना है, एक्सिस्टिंग पॉलिसी CPU यूटिलाइजेशन 50% पे है, स्केल अप करना है कि नहीं करना है, एंड ऑल दिस। तो स्केल अप का अभी कुछ आया नहीं क्योंकि सर्वर ही नहीं बने। इंस्टेंस मैनेजमेंट, अगर मैंने जो इंस्टेंस बनाया है, राइट, हियर अ लाइफ साइकिल हुक, वी विल टॉक, ओके, डोंट वरी। तो यू कैन क्रिएट द लाइफ साइकिल हुक एंड ऑल। इंस्टेंस कोई क्रिएट ही नहीं हुआ, इंस्टेंस अगर क्रिएट होता तो यहाँ पे दिख जाता। मॉनिटरिंग, मैंने कोई क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग ली है क्या, मैंने क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग तो ली ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो क्लाउड वॉच से ये यहाँ पे ग्रुप मैट्रिक्स, ये देखिए, अगर कोई सर्वर बना होता तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन आना शुरू हो जाता उसका, राइट। लेकिन कुछ अभी तो कुछ बना भी नहीं, तो सब खाली रहेगा। अगर मुझे रिफ़्रेश करना है तो आई कैन रिफ़्रेश इंस्टेंस, लेकिन इंस्टेंस बने नहीं है कोई भी। या सो विकास को एक मेल आया है, दैट्स व्हाट ही पुट इट इनटू द चैट विंडो।
एंड दैट टॉक्स अबाउट कि बॉस अपना मेल आईडी कंफर्म करो, बिकॉज AWS डज नॉट सेंड अ मेल विदाउट द कंसेंट। तो इट इज़ आस्किंग कि बॉस राइट आप कंफर्म करो आपका सब्सक्रिप्शन करेक्ट है, देन ओनली आई विल सेंड द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो बिकॉज यू नीड टू क्लिक ऑन द कंफर्म सब्सक्रिप्शन, देन ओनली द नेक्स्ट मेल विल कम, अदरवाइज द मेल विल नॉट कम। तो यहाँ पे गाइज प्रॉब्लम कहीं नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एज इट इज़। ओनली द थिंग इज कि हमने जो AMI लिया था लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर, उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर का आप AMI आप अपना ले लेंगे। मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन बहुत पुराना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डिडंट सपोर्ट, राइट, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, that's the only thing, because of that it did not work, but I leave it on you। तो आपको क्या करना है, आपको ऑटो स्केलिंग पूरा सेटअप करना है, और इसको एक काम और करना है, इसको लोड बैलेंसर्स के साथ भी ऐड करना है और चेक करना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, एंड इट इज चेकिंग इट इज वर्किंग। और सॉरी गाइज, हेलीकॉप्टर इज हियर, too much noise, I don't know, it's very close। now fine, yeah। सो आपको ऑटो स्केलिंग बनानी है, लोड बैलेंसर के साथ इसको ऐड करना है, राइट। आप बोलेंगे कि मुझे CPU यूटिलाइजेशन कैसे इंक्रीज़ करूँगा सर मैं। आप दोनों सर्वर पे जाइए, लेट्स से आपने 2 सर्वर लिए हैं डिज़ायर्ड, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपने अगर लोड ऑटो स्केलिंग से उसको लोड बैलेंसर ऐड कर दिया, तो आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी लाइक दिस, राइट, लोड बैलेंसर को जाएगी, लोड बैलेंसर सर्वर को भेजेगा, और यूटिलाइजेशन 50% होना चाहिए। 50% हो जाएगा तो एक नया सर्वर ऐड कर देगा, बट आप ये तो नहीं कर सकते ना। तो आप एक काम करिए, इन दोनों सर्वर के अंदर जाइए, इन दोनों के, इनका यूटिलाइजेशन 50% कर दीजिए, तो यहाँ पे एक और नया सर्वर ऐड होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेस्ट। तो आप बोलोगे मैं 50% कैसे करूँ, उसके लिए मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ। आप उस स्क्रिप्ट को लीजिए, आप सर्वर पे जाके रन कर दीजिए, तो यूटिलाइजेशन सर्वर का बढ़ जाएगा। ओके, इज इट ओके गाइस? ये वाला जो है, इस अगर विंडोज यूज़ कर रहे हो तो ये एग्जीक्यूट कर देना, सर्वर पे कॉपी करना आपने, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसको जाके विंडोज यूज़ कर रहे हो तो इसको ले लेना। मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड पे। वाइल ट्रू वेंड, जैसे इसको करोगे ना, आपका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा विंडोज सर्वर पे। .loop.vbs बनाओगे, विजुअल बेसिक फाइल, और डबल क्लिक कर दोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लिनक्स पे हो तो ये आपको ये इंस्टॉल करना है, आपको ये रन करना है, एक्सपोर्ट दिस, दोनों सर्वर पे जाके। CPU यूटिलाइजेशन आपका जितना भी है, लेट्स से आपने 1 CPU लिया है तो 1 CPU लिख दो, अगर आपका T2 माइक्रो, क्योंकि उसमें 1 CPU होता है। अगर आपने 2 CPU वाला लिया तो 2 CPU लिख दो, तो 100% पहुंच जाएगा यूटिलाइजेशन, राइट। 3 CPU लिखा है तो भी 2% लिख दो, क्योंकि वो 50% से ऊपर चला जाएगा, राइट। उसके बाद जाके आप लॉग में चेक भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपका यूटिलाइजेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो एक कमांड ले लीजिए मेरे से, बाय बाय। लिनक्स में आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये उबंटू के लिए है, APT उबंटू में चलता है। आप इसे RHEL में या अमेजॉन लिनक्स में मत चलाना। अगर इसको चला रहे हो तो यहाँ पे यम लिख देना, यम, YUM। दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल डिस्कसिंग द लिनक्स, राइट। तो ये लिनक्स के लिए है, विंडोज़ के लिए मैंने आपको ये कॉपी कर देता हूँ। ये करके ला सकते हो ना असाइनमेंट। एवरीथिंग इज सेम, कुछ नहीं करना है, जो मैंने किया एवरीथिंग इज सेम वही करना है आपको। बस ऑटो स्केलिंग सेटअप हो जाएगा, उसके साथ आपको अटैच करना है लोड बैलेंसर, और चेक करना है कि लोड बैलेंसर कैसे ऐड होता है, और उसके बाद आपको यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना है, और टेस्ट करना है कि न्यू सर्वर लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। मैनी पीपल सेड यस, सो आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।